Hello students, welcome to Learn with Hema's class. Today I shall be explaining you 8th class English Unit 1 Chapter 1.1, which is a poem A Time to Believe written by B.J. Mobitzer. Yes, I am going to do your warming up exercises as well as your workshop exercises with answers. So here we go. The first question over here is, in the warming up exercise, think, choose and fill up the labels with what a sunrise symbolizes. Now my dear students, sunrise means positivity. Positivity brings in many things inside us. So there are many words given over here in the brackets. You can see, if you have a textbook you can follow it, or if you don't have a textbook right now in this lockdown period, you can follow my screen. Jewelry, art, hope, birth, anger, new opportunities, good manners, inspiration, new achievements, happiness. Misery won't come. Misery won't come. Then rest we have bright moments, new aims, money, new surprises. Other than misery, you can have all the things into positive aspects. Second question is, an acrostic is a poem or a write-up in which the first letter of each line forms a word. You can see there are different words over here given: faithful, reliable, inspiring, encouraging, noble, dedicated. If you look at all these words and you take the first letter of all the words and arrange them accordingly, you get a word named friend. Okay, so this type of thing is called an acrostic. Same way, now two words are given to you here: believe and faith. First we are going to prepare on believe and then we are going to prepare on faith. See, believe I'll give you in two different manners. One, I'll give you single words for each, because for B it is given be certain of. I'll give you single words and then later on in a kind of one sentence. So first one, be certain of, is given. Then encourage. Third, lie. Fourth, inspiration. E for employment, V for victory, E for motion, or you can write any other words if you know them. Otherwise, if I write believe, be certain of everything that lies around you, inspire everyone and value everyone. So this is the thing again which I have made. Now the another word is faith, F-A-I-T-H. Now let's make some I'm again in this also I'm going to make a sentence formation. Well, you can make word to word also, such as F for friends, A for angels, I for inspire, T for truthfulness, H for happiness. And otherwise, if I'm making in a sentence format, friends are angels that are not only intelligent, thoughtful, but also honest. Okay, so this is another one which I have made over here. Now let's start with A Time to Believe. A very beautiful poem written by B.J. Mobitzer, A Time to Believe. Yes, it's a time to believe in yourself. Don't think what others are thinking. Don't think that what others will say. You just believe in yourself. So here are few examples which are being given. Let me start with the first stanza. 6 stanzas, a total of 6 stanzas. To believe is to know that every day is a new beginning, is to trust that miracles happen and dreams really do come true. To believe is to know that every day is a new beginning. Of course, हम हमेशा कहते हैं कि हर दिन नई शुरुआत होती है, तो ये हमारा यकीन है. To believe is to know that every day is a new beginning, is to trust that miracles happen and dreams really do come true. और हमें सपने देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए. क्या पता कब क्या चमत्कार हो जाए और हमने जो सपने देखे हैं वो सच हो जाए. ये तभी हो सकता है जब हम अपने आप में बिलीव करें. नेक्स्ट, टू बिलीव इज़ टू सी एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स. कई बार हम अपने अपने इमेजिनेशंस बनाते हैं, क्लाउड्स में अलग अलग शेप्स देखते हैं. तो अगर आपको उन शेप्स में एंजल्स दिख रहे हैं इन द डांसिंग फॉर्म, तो लोग आप पर हंसे तो हंसे, बट यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ दैट येस यू हैव सीन दैट. And to know the wonder of a stardust sky and the wisdom of the man in the moon.
जब तारों से भरी हुई रात होती है तो कितनी सुंदर दिखती है, कितनी अच्छी लगती है वो, ऐसे ऐसे लगता है मंत्रमुग्ध, मन मोह लेती है, ऐसी रात होती है। सो टू नो द वंडर, कितने वंडरफुल है वो स्टारडस्ट स्काई। जैसे ज़मीन पे धूल होती है वैसे आसमान में तारे बिखरे पड़े हैं, ऐसा वो स्काई का नज़ारा होता है। एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून, हमको पता है मून में एक हमको छाया सी दिखती है। कई कहानियों में ऐसा भी कहा जाता है कि एक बुढ़ी माई है जो झाड़ू लगाती रहती है। कुछ कहते हैं कि एक आदमी जो है, बुढ़ा आदमी जो है, चरखा चलाता रहता है। तो पुराने कई कहानियों में कई अलग अलग चीज़ें मून के बारे में बताई गई हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया, एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून, ये कहा गया है यहाँ पर। सो यू नेवर नो बट यू नीड टू बिलीव इन दैट थिंग। देन थर्ड स्टैंजा, to believe is to know the value of a nurturing heart, the innocence of a child's eyes, and the beauty of an aging hand, for it is through their teachings we learn to love. अब our parents, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। नर्चर करना, दैट इज़ टू ब्रिंग अप, टेक केयर ऑफ, वो चाहे हमारा खाना पीना हो, चाहे हमारे कपड़े हो, चाहे हमारी एजुकेशन हो, मैनर्स हो, कुछ भी हो, हम उन्हीं से सीखते हैं। वो हमें नर्चर करते हैं, तो वो हमसे कितना प्यार करते हैं। नर्चरिंग हार्ट, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आई, एक छोटे बच्चे की आंखों में आप देखोगे तो कितनी इनोसेंस, मासूमियत दिखती है, कोई छल नहीं, कपट नहीं। तो एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जब वो हमारे सर के ऊपर से हाथ घुमाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जब हमें प्यार करते हैं तो कितना सुंदर लगता है उनका हाथ घुमाना हमको। सो एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड, फॉर इट इज़ थ्रू देयर टीचिंग्स वी लर्न टू लव, क्योंकि उनके सिखाए हुए मेथड्स के थ्रू ही तो हम प्यार करना सीखते हैं। जैसे हम उनको देखते हैं वो करते हैं, वैसे ही हम करते हैं। वो हमसे प्यार करते हैं तो हमने भी प्यार करना सीखा है उनसे। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, टू बिलीव इज़ टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस व्हेन इट इज़ टाइम टू पिक अप द पीसेज एंड बिगिन अगेन। बेटा, बिलीव करना ऐसा चीज़ होता है कि आपको अपने आप से कभी भी विश्वास नहीं हटना चाहिए। आपको हमेशा अपने आप पर विश्वास है। अगर कभी भी, खुदा ना खास्ता, कभी भी आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे आपका परिवार पूरा टूट गया है, बिखर गया है, तो आपको बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उस वक्त, वही वक्त एक्चुअली आपका टेस्ट का टाइम है, जब आपको अपने अंदर भरोसा रखना है और आपको अपने अंदर की सारी ताकत जो है, सारा हौसला जो है, अपने आप बिल्ड करना है अपने आप में। और जो भी चीज़ें बिखरी है सब समेटो। जैसे कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो गया है, उस डिज़ास्टर से हटकर वापस उठो, एक नए जीवन की शुरुआत करो। एंड टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन। टू बिलीव इज़ टू नो वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड दिस इज़ आवर टाइम टू चेरिश इट। तो बिलीव करना क्या है, दैट कि हम कभी अकेले नहीं होते हैं, हमारे साथ हमेशा हमारा खुदा होता है, हमारा भगवान होता है। एंड ऑल्सो दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट, हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ जो है हमारे लिए एक गिफ्ट है, गॉड ने हमें गिफ्ट दी है। एंड दिस इज़ आवर टाइम टू चेरिश इट, और इस गिफ्ट को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए और ये एकदम संभाल के रखना चाहिए। इस गिफ्ट को संभाल के रखना चाहिए, यानी हमें हमारे साथ, खुद के साथ कभी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करना चाहिए। लास्ट स्टैंजा में आती हूँ। To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen, and all our hopes and dreams are within reach if only we believe. So to believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen. क्या भरोसा कब क्या सरप्राइज़ आपके सामने आ जाए, किस रूप में आ जाए। तो अगर आप सपने देखते हो तो उसको पूरा करने की कोशिश भी करोगे। तो पूरा करने की कोशिश जब तक नहीं करोगे तो आपके सपने कैसे मिलेंगे आपको। तो उसके लिए सपने देखो, ज़रूरी है। एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच इफ़ ओनली वी बिलीव। अगर हम बिलीव करें तो हम जो भी हमारे होप्स हैं, जो भी हमारे सपने हैं, ज़रूर पूरे होंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर ये पोएम जो है बीजे मॉबिट्ज़र ने लिखी है। बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड उन्होंने रखा है। अब इस
साइड में जो क्वेश्चंस है, मार्जिन क्वेश्चंस जिसे हम कहते हैं, 8 स्टैंडर्ड से आपको 8, 9, 10 स्टैंडर्ड, तीनों स्टैंडर्ड में जो भी आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स होगी उसके अंदर साइड में मार्जिन्स होंगे जिसमें आपको मीनिंग्स, हार्ड वर्ड जो वर्ड स्टडी है वो रहेगा उसके अंदर, एज वेल एज सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम पेज। इसी पेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो इसी पेज में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे अब आपको जो है एग्ज़ाम में आपके पैसेजेस आते हैं, तो पैसेजेस समझो ये आपका एक ट्रायल हो गया है, ये क्वेश्चंस आप आंसर कर पाते हो या नहीं। What should one know and trust every day? अब ये तो फर्स्ट स्टैंजा में ही आंसर है इसका। What should one know and trust every day? हमको क्या पता होना चाहिए और क्या ट्रस्ट करना चाहिए? So one should know that every day is a new beginning and one should trust that miracles do happen and dreams really do come true. हमें ये ट्रस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट मीनिंग दिया गया है स्टारडस्ट। स्टारडस्ट मीन्स हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी, बहुत ही सुंदर सा लगता है आसमान विथ ऑल द स्टार्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 सुपर नेचुरल रेफरेंसेज इन द सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में कुछ 2 सुपर नेचुरल इंस्टेंसेस दिए गए हैं। सुपर नेचुरल इंस्टेंसेस जिसमें पहला तो है एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स। यू कैन सी, टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स। सॉरी, एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड, ये एक सुपर नेचुरल थिंग है। एंड द विजडम ऑफ द मून, सॉरी, द विजडम ऑफ द मैन इन द मून, ये एक दूसरा सुपर नेचुरल है। सॉरी। नेक्स्ट, नर्चरिंग मीनिंग दिया गया है, मैंने आपको बताया था नर्चरिंग मीन्स जो आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जो नर्चर करते हैं आपको। प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, केयर एंड प्रोटेक्शन। एजिंग मीनिंग इज गिवन, ग्रोइंग ओल्ड, ओल्ड जो नॉर्मली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को हम बोल सकते हैं, या उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, एजिंग। व्हाट 2 क्वालिटीज़ आर नीडेड टू रिकवर आफ्टर अ शॉकिंग इवेंट। कोई अगर शॉकिंग इवेंट आपके लाइफ में आ गई है तो कौन से 2 क्वालिटीज़ आपको चाहिए? ऑफकोर्स स्ट्रेंथ एंड करेज, ये यहाँ पे इस 4th स्टैंजा में है, स्ट्रेंथ एंड करेज। पिक अप द पीसेस, ये फ्रेज है पिक अप द पीसेस, और इसमें हम मीनिंग देखेंगे। टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट, सॉरी, व्हेन इट इज़ टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन। तो पिक अप द पीसेस, रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर अ शॉक और डिजास्टर। मैंने जब पहले ही कहा था कि अगर कोई शॉक हो, कोई शॉकिंग इवेंट या डिजास्टर्स इवेंट आपके साथ हुई है तो आपको उसे भूल कर आगे बढ़ना है। चेरिश, चेरिश मीन्स होल्ड समथिंग एज वेरी डियर एंड ऑफ ग्रेट वैल्यू, मतलब किसी चीज़ को संभाल के रखना, संजोए रखना जो आपके लिए बहुत कीमती है। ऑफकोर्स लाइफ हमारे लिए बहुत ही कीमती है, इसीलिए हमें उससे संभाल के रखना चाहिए, उसके चेरिश करना चाहिए। विद इन रीच, विद इन रीच मतलब पॉसिबल टू अचीव, जो हम ड्रीम्स और होप्स हमारे होते हैं, जो हम देखते हैं वो हमारे रीच में होंगे। ऑफकोर्स येस। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड डज द पोएट एडवाइस एवरीबडी टू हैव। पोएट क्या एडवाइस करता है लोगों को, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? द पोएट एडवाइसेज एवरीवन टू हैव फेथ एंड टू बिलीव इन वन सेल्फ, है ना, आपको फेथ होना चाहिए एंड यू शुड ऑल्सो बिलीव इन वन सेल्फ। नाउ वी हैव सम इंग्लिश वर्कशॉप, अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है इंग्लिश वर्कशॉप हमारी स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट जो है ए, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स ऑकरिंग इन द पोएम। आप देख सकते हो ये सारे जो वर्ड्स 8 वर्ड्स है और बहुत ही टेढ़े मेढ़े दिए हुए हैं, तो मैं सभी के आंसर्स आपको दे देती हूँ। नंबर 1 जो है वो है मिरेकल्स, MIRACLES। एंड नंबर 2 पे होना चाहिए विजडम, WISDOM। नंबर 3 you will have courage, COURAGE। Number 4 you will have surprises, SURPRISES, surprises. Number 5 you have BEAUTY, beauty. Number 6 you have dreams, DREAMS. Number 7 you have value, VALUE. And number 8 you have wonder, WONDER. Okay, so next is write words from the poem that describe the following. Of course, now describing, these are adjectives. If we talk about describing, words are adjectives. अब ये सारे words जो है sky, heart, hand,
बिगिनिंग, सरप्राइजेज, ये सब नाउन्स है. तो सी, स्काई के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है पोएम में? स्टारडस्ट स्काई. फॉर हार्ट, नर्चरिंग हार्ट. फॉर हैंड, एजिंग हैंड. बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग. सरप्राइजेस, वंडरफुल सरप्राइजेस. तो ये सब हमारे एडजेक्टिव्स थे. नाउ से वाई द स्काई हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी. स्काई को क्यों कहा गया है उसको मैजिकल क्वालिटी है? बिकॉज वी कैन सी एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून इफ वी बिलीव. दिस इज द आंसर फॉर दैट. सेकेंड, even an aging hand has beauty dash dash dash. The aging hand has a beauty as this hand have taught us to love through their experience and carings and teachings of life. Then third one we have, we should believe dash dash dash, we should believe that we are strong and courageous. Yes, we should believe that we are strong and courageous because if a shocking disaster brings our life to zero, then we should never give up, but instead gather courage to pick up the pieces and get back to normal life. Okay, so these are the three answers which I have given you. Now third one is, make a list of any 6 things that the poet wants us to accept as true. अभी यहाँ पे हमने a time to believe there are 6 stanzas, as you have seen 6 stanzas, and the poet has also asked us to note down the 6 things that poet wants us to accept as true. So let us see. The first one is to trust that miracles happen in life. Second, to believe that dreams do come true. Third, to see the angels in the sky dancing among the clouds. Fourth one, to know the wonder of stardust sky. Fifth one, to know that we are not alone. And sixth one, to know that the beautiful surprises are awaiting to happen. So these are the 6 things which we have noted down from the text stanzas poem. The fourth question is, find from the poem positive qualities to fill up the web. Now from now onwards you will be having these kind of questions, web filling. Positive qualities. In the poem itself you must have seen many positive qualities such as new beginning, believe, hopes, dreams, courage, strength, and so on. So these are the things. I have given you 6. There are 5 boxes. I have given you 6. Now see, to believe is to see angels dancing among the clouds. Now this sentence, to believe is to see angels dancing among the clouds, this sentence is personification. Why it is personification? Figure of speech. Last year in 7th standard you must have studied some figures of speech such as simile, metaphor, repetition, alliteration, personification, and so on. Some figures of speech you must have learned. Now from this one is personification. So here you can see, to believe is to see angels dancing among the clouds. Now angels are some supernatural being which are non-human, and they are performing dance. Dance is a human activity, and if non-humans are performing human activity, then that line contains personification. So the above line contain a human characteristic dancing given to something non-human, that is angels. So the figure of speech used in the line is personification. Normally if you want to write figures of speech, you need to explain it also, only then you get full marks for it. Now next you have some 2 examples of another figure of speech which you will be doing it for the first time in 8th standard, that is epigram. Now each figure of speech I will explain in detail in my complete figure of speech session. So here I am just giving you answers. To believe is to know that every day is a new beginning. This is one example. To believe is to know that life is a gift, that no one is alone and that life is a gift. This is the stanza actually. So lines in poetry such as the above, ये 2 lines जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ी है, they state a general truth, जो सच्चाई है, and can be used as a quote, और हम इनको quote भी कर सकते हैं, है ना, quotes. So they contain the figure of speech epigram, जो हम बोलते हैं ना जीवन का कड़वा सच,
कड़वा सच है जो हम कहावतों में लिख सकते हैं या मुहावरे उनके दे सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज एपिग्राम। तो एपिग्राम क्लोजली रिसेंबल्स अ प्रोवर्ब। एक प्रोवर्ब को हम बोल सकते हैं कि वो एपिग्राम है। नाउ फाइंड फ्रॉम द पोएम 3 अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एपिग्राम। दूसरे 3 एग्जाम्पल्स हम पिकअप करेंगे एपिग्राम के। तो पहला एग्जाम्पल तो आपको दिया हुआ ही है यहाँ पे, टू बिलीव इज़ टू नो दैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग। ये फर्स्ट सेंटेंस आपका एपिग्राम है। और अभी दूसरा जो है ये टू बिलीव इज़ टू सी एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स। एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है एपिग्राम का। देन तीसरा एग्जाम्पल आप ले लो, टू बिलीव इज़ टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस। फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस, ये हमारा हो गया। गिफ्ट वाला तो ऑलरेडी इन लोगों ने दे दिया है ऊपर एग्जाम्पल। और थर्ड एग्जाम्पल हम ये कर सकते हैं, दैट वंडरफुल सरप्राइजेज आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। ये 3 हमारे एग्जाम्पल्स एपिग्राम के हो गए हैं। तो और 6th क्वेश्चन जो है ये डिस्कशन वाला है, जो एक क्लासरूम एक्टिविटी है, तो वो हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का चैप्टर ख़त्म हो गया है। So I hope you found this video useful, and please don't forget to comment on it. Thank you so much.